بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق جو ہے بنو ہاشم کے اوپر ہے۔ بنو ہاشم کو سمجھیے اچھی طرح، کیونکہ اللہ کے رسول کا خاندان بنو ہاشم تھا اور قبیلہ قریش تھا۔ ایک چیز ہم نے یہاں سمجھانے کی کوشش کری ہے، یہ عدنانی عرب نا، یہ قریش، بنو ہاشم، سید، علوی، یہ چار ہیں۔ یا اس کو علوی کو الگ کر لیجیے، اس کو الگ چیزیں یہاں تک عدنانی عرب، قریش، بنو ہاشم، سید نا۔ جو سید ہوگا وہ بنو ہاشم بھی ہوگا، قریش بھی ہوگا اور عدنانی عرب بھی ہوگا، ٹھیک۔ اور جو بنو ہاشم ہوگا اس کا سید ہونا ضروری نہیں ہے، ہر ایک بنو ہاشم جو ہے سید نہیں ہوگا۔ جو بنو ہاشم ہوگا وہ قریش بھی ہوگا اور عدنانی بھی ہوگا نا۔ اور جو قریشی ہوگا، قریشی میں تو ہر ایک کا بنو ہاشم ہونا ضروری نہیں ہے۔ بنو امیہ قریشی ہیں لیکن کیا ہے، بنو ہاشم نہیں ہے، لیکن وہ عدنانی ہوں گے۔ لیکن جو عدنانی ہے، ہر ایک عدنانی کا جو قریشی ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو نیچے والا ہے وہ تو سب کے اندر آئے گا نا، اوپر والے کا کے اندر جو ساری شاخیں وہ نیچے والوں میں منتقل ہونا ضروری نہیں ہے۔ عدنانی عرب کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اللہ کے رسول کا نسب جو ہے گنایا تھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر، یہ قریش ہیں ہے نا۔ فہر کا لقب جو ہے قریش تھا، انہی سے قبیلے قریش چلے ہیں۔ 10 قبیلے ہم نے جو ہے پچھلی بار سمجھائے تھے۔ قریش سے اوپر مالک، پھر نظر، پھر کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان، تو یہ عدنان ہے۔ جو عدنان کی اولاد میں سب وہ عدنانی عرب کہلائے ہے نا۔ اور جو قریش کی اولاد جو اس سے نیچے ہے سب وہ کیا عدنانی عرب ہے۔ جو ان سے نیچے ہیں وہ قریشی ہیں، اور جو ہاشم سے نیچے ہیں وہ بنو ہاشم ہے، اور جو اللہ کے رسول سے نیچے ہیں وہ سید ہیں۔ اس کو انشاءاللہ وہ تھوڑا سا سمجھا دیں گے جی۔ تو اسی طرح سمجھیے عبد مناف، یہ کون ہے؟ عبد مناف۔ عبد مناف یہ اللہ کے رسول کے اہل دادا ہیں، ہاشم کے اوپر والے۔ ہاشم کے اوپر والے جو ہے نا عبد مناف، ان کا نام لکھا ہم نے عبد مناف۔ سمجھانا تو ہمیں بنو ہاشم کو، لیکن تھوڑا سا بنو امیہ کو سمجھائیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ چیز آتی رہیں گی تو وہ آہستہ آہستہ آگے تک جو ہے اور مضبوط ہو جائے اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، پچھلی بار بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا تھا۔ ان کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد شمس، نوفل اور مطلب۔ ہاشم اس کو سمجھ لیجیے، ہاشم کے بیٹے شیبہ، یہ سمجھایا تھا۔ ہاشم کے بیٹے کون ہے؟ شیبہ۔ ان کا عبد المطلب نام کیسے پڑا؟ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے اس کو بدلا دیا تھا، الگ سے اس کی ویڈیو بھی جو ہے بنا کے ہم نے ڈال دی تھی۔ تو ہاشم کے بیٹے شیبہ جن کا نام عبد المطلب پڑا۔ عبد المطلب کس طرح پڑا وہ ہم پورا بتلا چکے۔ ان کے چاچا ہے، شیبہ کے چاچا عبد المطلب، یہ مدینے سے لینے گئے، انہیں لے کر آئے تو لوگوں نے کہتے تو مطلب جو غلام لے کر آئے، عبد مانے غلام کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہتے عبد المطلب ہے تو مطلب کا غلام ہے، تو اس لیے ان کا نام ہے جو عبد المطلب پڑ گیا۔ تو شیبہ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، تو 2 مشہور ہیں ان کو لکھ دیا ہم نے، ابو طالب، ابو لہب، عبداللہ، حمزہ، عباس، ٹھیک۔ ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر اور حضرت علی، حضرت علی کے یہ بیٹے ادھر ہم نے گنا دیے ہیں نا۔ ابو طالب کے 2 اور بھی بیٹے تھے، لیکن جو سب زیادہ مشہور ہے ایک بیٹے اور ہے مسلم، وہ بھی مشہور ہے لیکن وہ کم ہے، جعفر اور علی۔ جعفر کے بیٹے ہیں عبداللہ، تو یہ بھی ہاشمی ہے بھی ہے نا۔ اسی طرح حضرت علی کے بیٹے شادی جو ہے فاطمہ سے ہوئی، ان کے بیٹے حسن حسین، اور بھی اولاد ہے، کیونکہ ابھی ہم اللہ کے رسول کے نسب کو، اللہ کے رسول کی اولاد نہیں گنا رہے، اس لیے سب کو نہیں چھیڑے ہم۔ فی الحال بنو ہاشم کے اندر جو مشہور ہیں انہیں کو گنانا مقصود ہے ہمارا۔ تو اس کے بعد حسن اور حسین، ان کے بیٹے زین العابدین، ان کے بیٹے محمد باقر، ان کے بیٹے جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح عبداللہ کے بیٹے محمد، اللہ کے رسول، ہاں، ان کے بیٹی جو ہے فاطمہ، یہ ہاشم۔ اسی طرح ایک بیٹے حضرت حمزہ، ان کی کوئی اولاد نہیں، یہ جو ہے جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے علاوہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کا چچا ہے، جو عبد المطلب کے جو ہے بیٹے ہیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے علی، پھر محمد، پھر جو ہے عبداللہ اور جعفر۔ جو خلافت عباسیہ بنو امیہ سے آئی نا،
تو यहाँ आकर खिलाफत अब्बास के लोगों ने, अब्बास खानदान वालों ने जो है इसको जो है ले लिया। खिलाफत अब्बास जब आएगी इसको अच्छी तरह वहां समझाएंगे। तो ये हाशमी घराना है, ये क्या है, हाशमी घराना। एक वाक़या फज़ाइल अमाल के अंदर लिखा है, फज़ाइल सदक़ात के अंदर, कि हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर, ये आले जो है हज़रत जाफर के बेटे ना अब्दुल्ला बिन जाफर, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये हज के लिए मक्का गए। इनका ऊँट जो है खो गया, बीच में जो है बुढ़िया का घर पड़ा, तो वहाँ जाकर रुके और उनसे ये कहा कि हम बनु हाशिम हैं। हम क्या है, तो बनु हाशिम का मतलब समझे ना, बनु हाशिम यानी हज़रत हाशिम की औलाद के अंदर से, तो हम बनु हाशिम हो गए। अल्लाह के रसूल के औलाद में से खाली तो जो है सैयद होते, और सैयद इसलिए ने कहा क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला जो है ये सैयद नहीं है। सैयद जो होगा वो हज़रत फातिमा, हज़रत अली की औलाद है, वो सैयद है। जो हज़रत अली और हज़रत फातिमा की औलाद है वो कौन है, वो सैयद है ना। जो दोनों की औलाद होना चाहिए, वो हज़रत अली की भी और हज़रत फातिमा की भी। इसी तरह हज़रत फातिमा की औलाद नहीं है, सिर्फ हज़रत अली की औलाद है, तो वो भी सैयद नहीं होंगे। जैसे हमने एक नाम लिखा है मोहम्मद हनफिया, ये जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी बीवी से औलाद है, ये जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुए हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं अलवी। इस औलाद को क्या कहेंगे, जो हमने यहाँ लिखा था ना अलवी, मोहम्मद बिन हनफिया। यहाँ मोहम्मद बिन अली लिखना चाहिए था अलग है, लेकिन ये मोहम्मद बिन हनफिया के नाम से मशहूर हुए, क्योंकि अगर मोहम्मद बिन अली लिखते तो लोगों को जो है मुश्तबा हो जाता, जो है शक में पड़ जाते कि हज़रत फातिमा की औलाद हो ना। लेकिन इसलिए माँ की तरफ, माँ का जो कबीला था वो हनफिया कबीला था, उसकी तरफ मंसूब करके इनको मोहम्मद हनफिया, मोहम्मद बिन हनफिया जो है लिखते थे। ये जो है अलवी हैं, ये सैयद नहीं है। सैयद कौन होंगे, जो हज़रत फातिमा हज़रत अली की औलाद में है सिर्फ वो सैयद होंगे। जो सिर्फ हज़रत अली की औलाद है, हज़रत फातिमा की औलाद नहीं है, वो अलवी होंगे। और जो हज़रत हाशिम की औलाद में है वो क्या होंगे, बनु हाशिम। तो हज़रत अब्बास की जितनी औलाद है, खिलाफत अब्बासिया मैंने बतलाया जो है ये जो शुरू हुई, ये तो हज़रत अब्बास की औलाद में शुरू हुई और उसमें ही चली 1258 तक। तो ये खिलाफत अब्बासिया बनु हाशिम के अंदर आ गए। बनु हाशिम, इसमें भी जो फज़ाइल अमाल के अंदर एक वाक़या जो लिखा है, 16 साल का बेटा हज़रत हारून रशीद कर चला गया, वाक़या मशहूर है। हज़रात ने जिन्होंने फज़ाइल अमाल पढ़ी है, सुनी है, तो इस वाक़े को जानते हैं। जो जाने का इंतकाल हो गया, जिसने मजदूरी कराई थी, जो वो हारून रशीद के पास आया, तो हारून रशीद का बैठा, तो हारून रशीद ने जो है गम भी किया अपने बेटे के इंतकाल का, बातें भी हुई, और उसने कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम जो है अल्लाह के रसूल खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ताल्लुक़ कैसे, ताल्लुक़ इसी तरह है, क्योंकि हारून रशीद जो है खिलाफत अब्बासिया के अंदर है, तो हज़रत अब्बास का ताल्लुक़ किससे, अल्लाह के रसूल से। अल्लाह के रसूल चचा लगते हो, तो इस तरह जो है हारून रशीद का ताल्लुक़ किससे हुआ, अल्लाह के रसूल के खानदान से हुआ। इसी तरह दूसरा अब्दुल मनाफ के 4 बेटे, उसमें से हाशिम, हाशिम को काफी हद तक जो हमने समझा दिया। बनो हाशिम, अभी हाशिम को थोड़ा सा और समझा देंगे अभी। उसके अलावा अब्दुल शम्स, अब्दुल मनाफ के बाद कौन है, ये हाशिम के बाद अब्दुल मनाफ के बेटे अब्दुल शम्स, इनके बेटे हैं उमैया और एक रबिया, 2 बेटे है ना। उमैया के बेटे हर्ब, इसमें एक नाम बीच में छूट गया, उमैया के बेटे हर्ब के बेटे सख्र, जिनका नाम अबू सुफियान है, यानी नाम जो है सख्र है, कुन्नियत अबू सुफियान है। कुन्नियत को भी हम समझा चुके पहले है ना। उमैया का बेटे हर्ब के बेटे सख्र का नाम, सख्र कौन है, अबू सुफियान जो है मशहूर साहबी हैं। उसके बाद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, उसके बाद यजीद जो है हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए हैं, यजीद की जो है हुकूमत के अंदर ही शहीद हुए हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। उसके बाद मुआविया सानी, एक मुआविया हो गए, एक यजीद के बेटे जो एक मुआविया थे, मुआविया सानी, जिनको मुआविया सानी कहा जाता है। ये अब्दुल शम्स की यही मशहूर जो है नस्ल है। इसके अलावा रबिया, क्योंकि अब बनो उमैया को हम मुकम्मल नहीं समझा रहे, बनो उमैया को जब खिलाफत बनो उमैया शुरू होगी इंशाल्लाह जब और अच्छे से बनो उमैया को समझाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें बनो उमैया की आती रहेंगी, इसलिए मुख्तसर तौर पर बनो उमैया को जो है समझा रहे हैं। इसके अलावा बनो उमैया के वो अब्दुल शम्स के 2 बेटे, एक उमैया और एक रबिया। उमैया से तो नस्ल चली, अबू सुफियान, अमीर मुआविया, यजीद और जो है मुआविया सानी। एक रबिया के 2 बेटे उतबा और शेबा है ना। उतबा के फिर 3 बेटे थे, उसमें हमने एक को ही जिक्र करा खास तौर,
वलीद, है ना। एक बेटे थे अबू हुजैफा उतबा के ही। अबू हुजैफा ने ईमान लिया थे। अबू हुजैफा रजी अल्लाह अन्हु जो है ये ईमान लिया थे, सहाबी बन गए थे। ये ईमान नहीं लाए, इसको ध्यान रखना। अब्दुल शम्स के बेटे उमैया और रबिया, रबिया के दो बेटे उतबा शेबा, और उतबा के जो है दो बेटे वलीद और अबू हुजैफा। ये बात। इसके उर्द मुनाफ के तीसरे बेटे नौफल, नौफल बिन अदी बिन मुतइम बिन जुबैर, ये ईमान लेकर आया है जुबैर रजी अल्लाह अन्हु। इसमें कोई खास चीज नहीं है इसलिए मुख्तसर लिखा है इसको। इसके अलावा एक और बेटे मुत्तलिब, मुत्तलिब का नाम हमने बतला ही दिया, मशहूर है ना। मुत्तलिब के बेटे हारिस, हारिस के बेटे हारिस के बेटे उबैदा। हारिस के बेटे कौन है? उबैदा। जब जंग बदर हुई, जंग बदर के अंदर सबसे पहले रूल ये होते थे कि जब जंग होगी तो पहले 1 to 1 यानी एक एक आदमी दोनों तरफ से आएंगे, वो लड़ेंगे आपस में। जब उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी फिर जो है आपस में सारी की सारी जंगे दोनों तरफ की फौज जो है आपस में लड़ेंगी। तो उसके बाद जब जंग बदर के अंदर यहाँ से जो है बनु उमैया या जो है कुफार कुरैश ले आए और मक्का के जो है कुफार लड़ने के लिए आए, तो उन्होंने अपने 3 आदमी भेजे। सबसे पहले उतबा, शेबा और वलीद। हमें इन तीनों का नाम खास तौर इसलिए जिक्र करें। कौन कौन है? उतबा, शेबा और वलीद, ये 3 आए। और जब ये 3 आए तो उन्होंने कहा अपने खानदान में से भेजो अल्लाह के रसूल से। तो अल्लाह के रसूल ने अपने खानदान में से एक तो भेजा है हमजा रजी अल्लाह अन्हु को, ठीक, दूसरा भेजा है अली रजी अल्लाह अन्हु को, और तीसरे भेजा है उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को। तीसरे जो है ये हैं, ये भी क्या है? अल्लाह के रसूल के खानदान से ही जो है ताल्लुक रखते हैं। तो 3 ये। तो हज़रत अली और हज़रत हमजा ने तो सामने वालों को कत्ल कर दिया, लेकिन हज़रत उबैदा रजी अल्लाह अन्हु जो है शहीद हो गए। तो इनको शहीद बदर भी कहा जाता है। बदर के अंदर जो है कम मुसलमान शहीद हुए, इनमें से एक कौन है? हज़रत उबैदा रजी अल्लाह अन्हु भी हैं। बनु हाशिम को थोड़ा सा लिखकर थोड़ा सा बड़े में जो है इंशाल्लाह। ऐसी तरह इस चीज को फिर समझ लीजिए। अदनानी अरब, अदनानी अरब के अंदर कौन कौन है? एक तो हज़रत ज़ैनब बिनते जहेश जो अल्लाह के रसूल की बीवी हैं, ऐसे हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हुम। ये तीनों अज़वाज मुतहरात जो है अदनानी अरब हैं, कुरैश में नहीं है। इसके अलावा कई सारी अहलिया अल्लाह के रसूल की पिछले सुना बतलाया था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, है ना, और हज़रत उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, और भी एक दो और उम्महातुल मोमिनीन जो है वो कबीले कुरैश के अंदर से हैं। और उसके अलावा 2-3 अलग भी हैं, और 3 जो है ये हैं जो कुरैश नहीं है, अदनानी अरब हैं, अदनान में से हैं, कुरैश में से नहीं है। ज़ैनब बिनते जहेश तो इधर इनकी नस्ल में है, खुज़ैमा की नस्ल में। इस तरह ज़ैनब बिनते खुज़ैमा और मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये जो है मुज़र में से हैं, मुज़र के खानदान में से हैं। तो ये अदनानी अरब हो गए, ये कुरैश नहीं है ना। इसके अलावा कुरैश जो है वो अशरा हमने गिना दिया। उसके अलावा और भी जो है सहाबा मौजूद है। बनु हाशिम के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत जाफर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु, और सैयद जो है हज़रत हसन, हज़रत हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, उनके नीचे जो है जो नीचे चलते चले आएंगे, है ना, इमाम बाकर, मूसा, जाफर सादिक, मूसा काज़िम वगैरह, इसको इंशाल्लाह। बनु हाशिम को थोड़ा सा बड़े में लिख के और समझा देते हैं। बनु हाशिम, ठीक, इनके एक ही लड़के थे। कौन थे? हज़रत हाशिम के लड़के अब्दुल मुत्तलिब, है ना। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। 10 कोई और का ज्यादा रोल नहीं है ना, बल्कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया उस वक्त अल्लाह के रसूल के 4 चेहरे जिंदा थे। वालिद तो पहले इंतकाल कर चुके थे, 4 चेहरे जिंदा थे। 4 में से 2 ईमान लाए और 2 ईमान नहीं लाए ना। जो ईमान लाए उसमें हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ना, और दूसरे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ना।
یہ عبداللہ اللہ کے رسول کے والد ہیں. اور جو ایمان نہیں لائے ابو لہب اور ابو طالب ہے نا. یہ دو ایمان نہیں لائے اور یہ دو ایمان لے کر آئے, اور یہ اللہ کے رسول کے والد ہیں حضرت عبداللہ. اس طرح ابو طالب جو ہے ان کے بیٹے کون کون تھے؟ جعفر رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مسلم رضی اللہ عنہ. 3 بیٹے تھے ہے نا. حضرت جعفر کے 3 بیٹے عبداللہ اور محمد, یہ تینوں مشہور ہیں. یہ عبداللہ بن جعفر زیادہ مشہور ہیں, ان کے فضائل صدقات کے اندر بہت زیادہ واقعات ہیں عبداللہ بن جعفر کے, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کون عبداللہ ہے نا, تو اس لیے ہمیں معلوم بھی نہیں چل پاتا کس کا واقعہ چل رہا کس کا واقعہ نہیں چل رہا نا. اور محمد جو ہے ان کا بھی جو ہے واقعات بھی موجود ہیں, اور اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو اولاد ہے اللہ کے رسول کی نواسی, ان سے نکاح بھی جو ہے ان کا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ مسلم ہیں, یعنی عقیل جو ہے حضرت علی کے بھائی ہیں, مسلم جو ہے وہ حضرت حسین کے بھائی ہوں گے. تو حسین نے مسلم کو بھیجا, مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا ہے نا, اور کوفہ والوں نے جو وہاں پہ گورنر تھا حضرت مسلم کو نے وہاں شہید کر دیا, لمبا واقعہ ہے نا. اور حضرت عباس جو ہے ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس, یہ بہت زیادہ مشہور جو ہے صحابی ہیں. تو ہم نے ایک چارٹ بھی بنا رکھا ہے, جو ان کا فوٹو اسٹیٹ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں کروا سکتے ہیں, تھوڑا بڑا ہے. اسی طرح حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ, ان کے بیٹے حضرت علی اور ان کے بیٹے محمد, اور ان کے جو ہے 2 بیٹے, ایک ابراہیم اور دوسرے جعفر منصور. یہیں سے جو ہے خلافت عباسیہ شروع ہوئی ہے ان سے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی ہے نا. یہ بنو ہاشم جو ہے مختصر طور پر ہم نے سمجھا دیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.